Okay, we are going to see the new topic of this chapter only, AC generator. So AC generator, we'll see the purpose, principle and theory behind it and numericals. So sometimes questions are asked, इसकी theory पर derivation आता है, derive the relation for EMF. So we'll do all the points related to AC generator. So this generator generates the alternating current, which is the next chapter. Alternating current हम पढ़ने वाले हैं immediately after this next class में. तो AC generator it converts mechanical energy into electrical energy. यहाँ पर इस साइड में ओके तो इसका पर्पज हो गया converts mechanical energy into electrical energy. प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. You have to explain this. I have written in short. It works on the principle of electromagnetic induction. We have to further explain it. Whenever there is change of flux linked to the any conductor, any coil, there will be the induced EMF due to change of flux according to Faraday's law. So you have to explain also. Short में if you want to remember principle is based on electromagnetic induction. All right. तो it has the coil. ये वाला देखो coil है ये. It will have many turns like this. Soft iron core के ऊपर होगा. ठीक है. Which is not shown here. Coil also called armature is rotated by the rotor shaft. यहाँ पे rotor shaft है. This will be connected to the engine or turbine. यहाँ पे turbine रहेगी या engine रहेगा. Power stations में turbine रहती. और अपार्टमेंट में जो जनरेटर्स होते हैं शॉपिंग मॉल में वहां पे डीजल इंजन रहता है जो ट्रक में फिट होता है वही पीछे उसमें लगा दिया जाता है. ठीक है. तो उसको स्टार्ट करेंगे. इंजन को जो है इंजन को एक फिक्स कर दिया जाता है उसके एक्सीलेटर कितना 50 आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी 50 होती है इसीलिए 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या 50 हर्ट्ज मतलब उसका जो रोटर है ना शाफ्ट है it is rotating 50 cycles per second. That is what is the frequency of Indian supply. ठीक है. तो जनरेटर का जो शाफ्ट है it is making 50 revolutions per second. In other words 3000 rpm 50 into 60 3000 rpm that is 3000 rotation per minute. All right. 50 hertz means 100 times current will be zero. ये वन फ्रीक्वेंसी हो गई. 2 बार जीरो. पहला वाला छोड़ दो. 2 साइकिल्स में कितने बार जीरो हो रहा है 1 2 3 4. फर्स्ट यू इफ यू आर टू काउंट लास्ट फर्स्ट छोड़ना पड़ेगा. 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि करंट विल बी जीरो और वोल्टेज विल बी जीरो 100 times in 1 second. All right. So shaft rotates that fast. Axis of rotation is perpendicular to the magnetic field. You see this axis of rotation which is perpendicular to the magnetic field lines. Otherwise induced EMF will not be there. Change of flux will not be there. ठीक है. Perpendicular होना चाहिए. Axis of rotation should be always perpendicular to the magnetic field lines. Then only change of flux is possible, otherwise not. Getting? So this is, I have just highlighted this point. Axis of rotation is perpendicular to the magnetic field lines. There is induced EMF due to change of flux, due to change of effective area. Effective area अभी देखो फील्ड लाइंस ऐसे हैं. इफेक्टिव एरिया 0 है और उसके बाद जब परपेंडिकुलर हो जाएगा शाफ्ट तो मैक्सिमम एरिया. यहाँ पे देखो डायग्राम. यहाँ पे देखो कैन यू सी
अभी मैक्सिमम एरिया है, फील्ड लाइंस मैक्सिमम एरिया से क्रॉस हो रही, अभी मिनिमम पैरेलल जा रही फील्ड लाइंस। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल or armature is changing, therefore change of flux is taking place, therefore induced EMF according to Faraday's first and second law. This is just that theory behind it, and numerical इसका डेरिवेशन है, थियरी में डेरिवेशंस भी आ गया है ना। थियरी को मैं वर्किंग एंड थियरी एक साथ कर दिया, इसको वर्किंग में वर्किंग लिख देता हूँ, ठीक है, एंड थियरी। ऑलराइट, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, derive the relation for induced EMF in the coil rotating in magnetic field. So without mentioning the generator, they give you the question. So we get confused. This, what is called this theory, we don't know, but it is nothing but a generator, theory of generator, derivations of induced EMF in generator. So questions can be asked without mentioning the generator. So same derivation you have to do. ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन देखो, n will be the number of turns, omega is the constant angular speed which is equal to 2 pi f, f is the frequency in hertz. इसका यूनिट क्या होता है, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड होगा, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। b is the uniform magnetic field, a is the area of the loop, and vector is its area vector perpendicular, वेक्टर ए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एरिया ऑलवेज। अभी कितना एरिया वेक्टर अभी किधर आएगा, इसका ऊपर आएगा, फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना, एट दिस मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमने पढ़ा था पहले भी, तो एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए इज द एरिया वेक्टर, बी इज द फील्ड। एट एनी इंस्टेंट टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। डू यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन का फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से थीटा विल बी ओमेगा टी। एज्यूमिंग टी इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज 0, तब ये रिलेशन आता है, टी इज इक्वल टू पे 0, टी इज इक्वल टू टी 0 पर थीटा 0 है, तो विल हैव थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। लूप कैसा होगा फिर, टी इज इक्वल टू 0 पे लूप कैसा होगा बोलो, लूप विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली सिचुएशन होगी, ये वाला, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर होगा, फील्ड भी इधर होगी, थीटा विल बी 0, तो लूप विल बी परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। यहाँ से टर्न करेगा वो ऐसे, तो एरिया वेक्टर कहीं नीचे जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, which is equal to ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन पर, इस ओरिएंटेशन पर थीटा 0 लिया गया है। यहाँ पे देखो कहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पर। तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। इफ यू डोंट मेंशन नो प्रॉब्लम, बट कभी तुम्हें ये हेल्प कर सकता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, उस समय टी 0 कहाँ पे लिया गया, थीटा इज इक्वल टू 0, लूप इज परपेंडिकुलर, आई मीन लूप इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे रेड से लिख दूं, प्लेन ऑफ द लूप इज, और फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लूप, फील्ड लाइंस आर उस समय टी इज इक्वल टू 0 लिया गया, और वी गेट द एंड रिजल्ट दिस, साइन थीटा के टर्म्स में हमारा इंड्यूस ईएमएफ आता है। अगर सपोज कॉस थीटा के टर्म में लिखा है ये,
तो t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 पे लिया गया होगा, इसलिए cos थीटा भी कभी हो सकता है। cos थीटा है तो वही जनरेटर रहेगा, वही EMF रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट इक्वेशन में भी डिफरेंट। cos की इक्वेशन भी हो सकती है। ये पॉइंट कहाँ का लिया है? SHM में हमने पढ़ा था, है ना। जब आप पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो साइन की इक्वेशन आती है t इज इक्वल टू 0 पर, और अगर हम t इज इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट पे लेते हैं t इज इक्वल टू 0 तो cos की इक्वेशन आती है, पार्टिकल वही रहता है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल। somewhat similar to that situation here also. Ideal situation is this: t is equal to 0 is taken when theta is 0, field lines are perpendicular to loop. डायग्राम मैंने दिखाया ये वाला, बट यहाँ पर थीटा कितना है? यहाँ पे थीटा 90 है, फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, तो ये रोटेटिंग कंडीशन दिखाई गई। दिस इज नॉट द इनिशियल t is equal to 0 वाली कंडीशन नहीं है, जस्ट जनरल कंडीशन है। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी आफ्टर दिस, दिस इज द पॉइंट। अभी कैसे निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ? फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, अपना डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, तो सिंस फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? ये थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट कर दी। एंड आल्सो फैराडे सेकंड लॉ सेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एन अगर है तो बाहर लिख दिया हमने, डी फाई बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन बी ए तो बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी, टी, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर, ओमेगा भी बाहर आएगा, कांस्टेंट भी बाहर आएगा, तो इट विल बी एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इसको पूरे को पीक ईएमएफ मैक्सिमम, इसको पूरे को हमने, ये सब कांस्टेंट है देखो, ई नॉट ले लिया, वेयर एन ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ई नॉट, इज इट इज कॉल्ड मैक्सिमम और पीक ईएमएफ। इजी टू रिमेम्बर, देखो चार टर्म्स हैं इसमें, एन ओमेगा ए बी, तो नवाब, ओमेगा को डब्ल्यू पढ़ो तो इट विल बी नवाब। गॉट इट? It has four terms. N is the number of turns, omega is the angular speed, A is the area of the loop, B is the magnetic field. तो E naught is equal to नवाब। ये इक्वेशन का डेरिवेशन आता है। Sometimes they mention the name of generator, sometimes they don't mention the name of generator. So this is important. Regularly asked question है। Derive the relation for induced EMF in the coil rotating in magnetic field. क्लियर, इजी है कंपैरेटिवली, जस्ट फ्लक्स की इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करना है। You can just note down, और अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट करके रखो, बिल्कुल हैंड रिटन है। अभी मुझे पता लगा है कि तुम लोग लिख नहीं रहे हो, है ना। जब मैं कोई पूछता हूँ पीछे देख के बताओ तो फिर आंसर ही नहीं आते। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट राइटिंग, स्टिल आई एम टेलिंग यू, जस्ट मेक द नोटबुक प्रॉपर नोटबुक और पे अटेंशन इन द क्लास, डोंट मिस द क्लासेस और इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। हर्ष, यू आर राइटिंग? यस सर। नोटबुक कंप्लीट करो पूरी। भाविका, आर यू राइटिंग? Yes, sir. भूपेश? Yes, sir.
दिशा, Yes, sir. देवित, Yes, sir. okay, who else? खुशी, you are writing, you replied. नमन, लिख रहे हो तुम? नमन is not responding. है ही नहीं क्लास में, वो ऑन करके चला जाता है इधर उधर. शिवानी, you are writing. Yes, sir. सोनिया, Yes, sir. okay. Saranya is absent. Bhushan is absent today. Who else और कौन है? Okay, so this is important derivation. इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं, वन इज द सॉल्व एग्जांपल, अदर इज एक्सरसाइज. उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, जस्ट विल लर्न सम मोर पॉइंट. एट t is equal to 0, थीटा is equal to 0, ऑलरेडी वी हैव मेंशन ऊपर. तो फ्लक्स कितना होगा? NBA cos थीटा, cos थीटा 1 हो जाएगा. फ्लक्स विल बी NBA. और EMF में sin थीटा आता है, दिस इज थीटा ओनली, ओमेगा डे थीटा. तो थीटा अगर 0 होने से sin थीटा 0 हो जाता है, तो उस समय इंड्यूस EMF 0 होगा. जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है, इंड्यूस EMF मिनिमम है. एंड व्हेन थीटा 90 है, उस समय फ्लक्स 0 हो गया और इंड्यूस EMF मैक्सिमम हो गया. तो दोनों 90 डिग्री वो है, आउट ऑफ फेज. एक साइन का फंक्शन, एक कॉस का फंक्शन है. जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम, EMF मिनिमम एंड वाइस वर्सा. जिस समय फ्लक्स 0 है, EMF मैक्सिमम है, उस समय साइन 1 हो जाएगा. यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें. तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम, EMF इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे देख भी सकते डायग्राम में. ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये रिजल्ट लिख लो, यहाँ तक लिख लो नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा था व्हेन फ्लक्स इज मिनिमम फाइंड आउट द इंड्यूस EMF. तो ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन ओमेगा t 1 हो जाएगा. तो नवाब ही निकलना है, ई नॉट ही निकलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आगे. तो ये डायग्राम जस्ट तुम्हें, यू डोंट हैव टू मेक, बट समझ लो. देखो यहाँ पे देखो फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस. EMF का ग्राफ ऐसे आया, साइन फंक्शन है ना, देखो ये साइन फंक्शन है, इसका ग्राफ जो है नीचे ड्रा किया. देखो ये साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ. आई टोल्ड यू ट्वाइस, यू डोंट हैव टू ड्रा, बुक में देख लेना. साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है. ठीक है, तो जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है, EMF मिनिमम है. यहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया, देखो पैरेलल हो गई कॉइल. फ्लक्स 0 है, EMF मैक्सिमम है, तो दोनों 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है. जिस समय एक 0 है तो दूसरा मैक्सिमम. फिर से यहाँ पे देखो ये हो गया, वर्टिकल हो गया, फिर से EMF 0 हो गया. ठीक, तो ये ग्राफ अपनी NCERT बुक से पढ़ लेना, देख लेना. बट ये पॉइंट को हमने लिख ही दिया है, जो ग्राफ में समझाया उन्होंने. बाकी तो इंट्रोडक्ट, बाकी सब इंफॉर्मेशन है. देखो you don't have to write this. Instead of coal, if nuclear fuel is used, we get the nuclear power generators. Modern day generators produce electric power as high as 500 megawatt. That is, one can light up 5 million. Mega means million ही होता है. 5 million 100-watt bulbs simultaneously. In most generators, the coils are held stationary and electromagnets which are rotated. Coil को stationary कर दो, तो magnet को rotate करो, तभी भी change of flux होगा. The frequency of rotation is 50 hertz in India. In certain countries such as USA, it is 60. वहां पे थोड़ा फास्ट जनरेटर घूमता है. फास्ट घूमने से ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है क्या? नॉट नेसेसरली. अदर पैरामीटर्स आल्सो आर इंपॉर्टेंट, बट अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे और फास्ट घुमाया तब ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. बट वैसे तो वेरिएबल है. पीक वैल्यू की बात करें, ओमेगा इफ यू रोटेट फास्ट, NAB कांस्टेंट रखो. यहाँ पे देखो
ये तो इफ यू रोटेट फास्ट पीक ईएमएफ विल इंक्रीज, नंबर टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, ए पर भी डिपेंड करता है, फील्ड पर भी डिपेंड करता है। अपने ऑटोमोबाइल में भी अपने अपने टू व्हीलर में भी जनरेटर होते हैं, पता, उसमें कॉइल रेस्ट पर रहता है, ये रेस्ट पर रहता है, और मैग्नेट्स घूमते हैं इसके चारों तरफ ऐसे, छोटा सा जनरेटर होता है टू व्हीलर्स में, बैटरी को चार्ज करता है, बाकी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी सप्लाई देता रहता है जब तक गाड़ी चलती रहती है। यहाँ पे और देखो, ये जो कॉइल है उसका एक एंड तो इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, कॉइल का दूसरा एंड इसके साथ कनेक्टेड है। जब ये कॉइल घूमता है तो स्लिप रिंग भी रोटेट करते हैं ये, ठीक है। और ये जो कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रशेस लिखे हैं देखो, ये कंडक्टिंग बनाई जाती है उसको, सो दैट यहाँ से सप्लाई बाहर आए, हार्ड भी रहते हैं, है ना, सो दैट दे शुड नॉट वेयर आउट। तो ये ऐसे इसको टच में रहते हैं, इसके साथ ऐसे पीछे से स्प्रिंग रहती, प्रेस करके रखती है उसको। ये सब जनरेटर के, ये यहाँ से यहाँ तक सिस्टम जनरेटर का बॉडी के साथ अटैच रहता है, ये रोटेट नहीं करता है। और स्प्रिंग जो जो स्प्रिंग है जो प्रेस करती, कंडक्टिंग रहती, उसके साथ वायर कनेक्ट कर दिया और बाहर सप्लाई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाहर लिया। अभी यहाँ पर जो है, जिस समय ये साइड ऊपर जा रही है ना, तो उस समय से करंट की डायरेक्शन सपोज इधर है, बाद में जब ये घूम के पूरी इधर आ जाएगी तो ये नीचे जाएगी तो करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी फिर। तो हाफ साइकिल में करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में बाहर की तरफ आएगा वो। तो दैट इज हाउ इट इज चेंजिंग। देखो यहाँ पर जो है हाफ साइकिल में पॉजिटिव करंट है, फिर नेगेटिव हो जाता है, तो वो साइड दूसरी तरफ जब आ जाती है, अगर उससे पहले करंट इंटर हो रहा था, जब ये यहाँ पहुंचेगी तब उसी से बाहर निकलेगा। इंटर हो रहा था हाफ साइकिल में, एक साइड की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक साइड की नेगेटिव। अगर हमने सपोज ये साइकिल ये पॉजिटिव ली तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से साइड चेंज हो जाती है उसकी, घूम के जब ये इधर आ जाती है, एक साइड में ऊपर जा रही थी, दूसरी साइड में नीचे आती, फील्ड तो चेंज होती नहीं, फील्ड लाइन तो इधर ही है। तो फील्ड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज हो रही है हाफ साइकिल के बाद, तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, अल्टरनेटिंग, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो इसको मैं थोड़ा डार्क बना दूं, एक मिनट थोड़ा सा डार्क बना देता, इसकी वो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पोलैरिटी भी रिवर्स हो रही आफ्टर हाफ साइकिल। गॉट इट? तो दैट इज व्हाट इज एसी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, सॉलिड एग्जांपल है। Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100 tons coil of area this much. The coil rotates at half revolution per second. Frequency कितनी हो जाएगी? Half. Frequency is number of cycles divided by time. है ना? या frequency is simply revolutions per second, आधा ही है, तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा 2 pi f से, and it is placed in the uniform magnetic field this much perpendicular to the axis of rotation. Perpendicular ही होना चाहिए, मैंने बताया, field should be perpendicular to the axis of rotation. What is the maximum voltage generated in the coil? The maximum voltage is now up n omega ab. Number of turns दिए 100, ओमेगा यहाँ से पुट कर देंगे, ए यहाँ से पुट कर देंगे, फील्ड यहाँ से पुट कर देंगे। ये सॉलिड एग्जांपल है, but it can be asked in the board and competitive examination. तो इसको कंप्लीट कर लेना और आंसर पहले सॉल्व किया करो, देन यू मैच द आंसर। तुम्हारा जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, फिर वो कम हो जाएंगी। सॉल्व इट अप टू द लास्ट, देन सी द आंसर, नहीं तो एग्जाम में फिर मिस्टेक होती।
ऐसा ही क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज का, देखो सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इज गिवन 8 टर्न्स दिए हैं, तो एरिया आ जाएगा, टर्न्स दिए दो पैरामीटर होगा, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद द एंगुलर स्पीड, ओमेगा भी डायरेक्ट दिया हुआ है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, बी भी दिया हुआ, सारे टर्म्स दिए हुए हैं, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, तो मैक्सिमम तो ये नवाब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज ईएमएफ जो है, एवरेज ईएमएफ 0 होता है, बिकॉज आधा साइकिल, एवरेज ईएमएफ 1 साइकिल के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 0 होता है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, it will be in long duration, आधा प्लस होता है इधर, आधा माइनस, तो ये 0 हो जाता है एवरेज ईएमएफ फॉर 1 साइकिल एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। एसी में भी पढ़ेंगे इसको हम, ये पॉइंट हम एसी में एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें, ठीक है। इफ द कॉइल फॉर्म्स क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो ओम्स लॉ, I is equal to पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ जब मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम करंट आएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे 10 ओम रेजिस्टेंस से। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल्स हीटिंग, वेयर डज द पावर कम फ्रॉम, पावर कम फ्रॉम द मैकेनिकल सोर्स, या तो टरबाइन उसको रोटेट कर रही है या इंजन रोटेट कर रहा है, बट एवरेज पावर लॉस कैसे निकालेंगे, ये भी एसी चैप्टर का है, इसका फार्मूला एसी के चैप्टर में है, यहाँ पे नहीं है, बट फार्मूला ये होता है, देखो एवरेज पावर लॉस जो है हाफ इंटू ई मैक्स इंटू आई मैक्स, ये कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन हम एसी के चैप्टर में करते हैं। तो दिस इज जो दो पार्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर के बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में पावर का डेरिवेशन करेंगे हम ये पहले अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो बाकी दोनों पॉइंट ठीक है, ये वाला कर सकते हैं और ये भी नेक्स्ट क्लास में आएगा, और ये मैक्सिमम करंट, ये दो पार्ट यहाँ के, ये दोनों नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तो दिस इज द जनरेटर ओवर। नाउ एक ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज, इसमें कुछ पार्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं, BLV, इमोशनल EMF, ये सब तो वो उसी का ही है वैसे, फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। देखो ये कंडक्टर है, ये स्लाइड हो रहा है इधर, ये कंडक्टिंग रेल्स है जो कि की के साथ कनेक्टेड होते हुए जनरेटर के गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पर ये फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हेन की इज ओपन एंड रॉड इज मूव्ड विद द स्पीड 12 इन द डायरेक्शन शोन, गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें पता है BLV, पोलैरिटी भी V क्रॉस B, फिंगर्स इधर रखो, B नीचे जा रहा है, इधर टर्न करो, थंब इधर जाएगा, तो P विल बी पॉजिटिव वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से, और B ये वाली Q विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, इज देयर एनी एक्सेस चार्ज बिल्डअप एट द एंड्स ऑफ द रॉड, यस, क्योंकि ये की ओपन है, यहाँ पे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, आगे फ्लो नहीं हो पाएंगे, की इज ओपन, आंसर इज यस, की इज ओपन। व्हाट इफ की इज क्लोज, क्लोज है तो फिर ये फ्लो होना शुरू हो जाएंगे ऐसे, देन नो, बिकॉज दे विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। विथ की ओपन एंड रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द रॉड। जब की ओपन होती है ना, तुम्हें फोर्स फील नहीं होता है, बिकॉज करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो F इज इक्वल टू BIL 0, ठीक है। तो देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड PQ, इवन they do experience the magnetic force due to the motion of the rod, explain। तो ये पोलैरिटी पॉजिटिव कैसे हुई, फोर्स लगा तभी तो इधर गए, बट देयर डेवलप द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस हो जाता है, इसलिए नो नेट फोर्स।
इसके आंसर यू कैन गो थ्रू लास्ट में। तो जब की ओपन होती है तो नेट फोर्स 0 होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नेट फोर्स 0 करा देती है। व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन की इज क्लोज? रिटार्डिंग फोर्स का ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, है ना, पहले डेरिवेशन किए थे, ये वैल्यू पुट कर देना इसमें, तो ये आ जाएगा। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग? पावर के फार्मूले में पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, तो एफ निकालेंगे पीछे, वी से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज ये फार्मूला हमने डिराइव किया, फिर से मत निकालो, एफ आने के बाद वी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इतने कैलकुलेशन बार बार किस लिए करना। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ पहले पार्ट में निकाला, वी से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये पावर हो गया। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे हैं तो फ्लक्स ही नहीं होगा, फील्ड लाइन कटेंगी नहीं। मैंने बोला ना फील्ड लाइन कट होनी चाहिए, पैरेलल में फील्ड लाइन विल नॉट कट। मैंने कैसे बोला? इसको समझो कि ये रेजर है और फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, उसको कट करता हुआ जाएगा ये रॉड। फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक, इस एंड से लेकर अंदर वाले एंड तक है, लाइक दिस। तो दिस इज अ रेजर ब्लेड टाइप है ना, उसको कट करता हो जाएगा। अब फील्ड लाइन भी अगर ऐसे ही हो गई तो कहाँ से कट करेगा? तो 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो पढ़े थे उसी के पॉइंट से बहुत सारे। और कितना हीट प्रोड्यूस होगी? आई स्क्वायर, पावर आई स्क्वायर आर से भी आएगा, ये आई स्क्वायर आर से निकालो तभी भी आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वी से भी आ जाएगा। ये दो अलग अलग फार्मूले से भी आंसर आ जाते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन जस्ट कंप्लीट। इसमें फार्मूले भी दिए पीछे, देखो इन्होंने आई स्क्वायर आर से निकाला, देखो ये एफ वाला पार्ट, मैंने एफ इंटू वी से बोला तुम्हें, ये 0 है, ठीक है। तो ये अपने आप ट्राई करो, पीछे सॉल्यूशन फार्मूले भी दिए, और ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ सम एडिशनल पॉइंट्स अबाउट द इंडक्टर। इंडक्टर के कुछ और पॉइंट हैं जो कि तुम्हें न्यूमेरिकल में काम आएंगे, तो लेट्स सी व्हाट आर दोस एडिशनल पॉइंट्स। देखो व्हेन करंट, ओके यहाँ तक ठीक है ना, दिस इज ओके, ये न्यूमेरिकल्स और ये मैंने पूरी हिंट दे दी सभी की। सॉल्व एग्जांपल 11 था, ये एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, दिस वाज 14। नाउ सम एडिशनल पॉइंट्स about the inductor. When current in the inductor changes, then magnitude of induced EMF is given by, उसमें self back EMF प्रोड्यूस होता है, which is माइनस हटा दिया एल डी आई बाई डी टी। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बैक ईएमएफ की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट मैग्नीट्यूड इतना होगा। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो नो बैक ईएमएफ, नो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ और बैक ईएमएफ, ओके, और बैक ईएमएफ। बट हमें ये बैक ईएमएफ कभी कभी सपोर्ट भी करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, ये नहीं कि हमेशा बैक डायरेक्शन में हो, बट फिर भी इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, अपोज करता है इसके चेंजेस को, ठीक है। नाउ दो सिचुएशन हो सकती है, व्हेन करंट इंक्रीजेस then of induced EMF will be left hand side, ओके। इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको हटा। नीचे डायग्राम बनाया मैंने, देखो व्हेन करंट इंक्रीजेस तो पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट हैंड साइड में, करंट किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। पॉजिटिव पोलैरिटी क्यों? अपना ये अपना करंट इधर भेजेगी, इसको अपोज करेगी, इस करंट इंक्रीजिंग करंट को कम करेगी। ये करंट बैटरी से आ रहा है तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, सो दैट इंड्यूस करंट विल बी इन अपोज। ये इंड्यूस करंट है, इसको इंक्रीजिंग से रोकेगा, बढ़ने से रोकेगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहने वाला है, इससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना।
उतने वोल्ट की बैटरी लगा के किरचॉफ लॉ हमने सीखा था, वो लगाना पड़ सकता है। उतने वोल्ट की बैटरी से ई निकाल के यहाँ पे सपोज ई 10 वोल्ट आया तो 10 वोल्ट से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, फिर किरचॉफ लॉ से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब करंट ये बढ़ता है तो यहाँ पे प्लस बनता है, यहाँ पे माइनस बनता है, उसको हम ऐसे बैटरी से दिखा सकते हैं। इसको हटा के कितने वोल्ट की बैटरी, ये जो ई है, ई हम निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे, ई विच इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक, और इसका अपोजिट हुआ तो डायरेक्शन, इसकी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। When current decreases, then positive polarity will be on the right hand side. अभी इनकमिंग करंट डिक्रीज हो रहा है ये, तो क्या करेगा, ये इंड्यूस करंट भी इधर ही होगा, क्योंकि वो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। आई इंड्यूस विल बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए इसकी पोलैरिटी ऐसे बनेगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है अभी, ये 2 पॉइंट को याद रखो, फिर आगे देखते ब्रेक के बाद। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा ये हमें पॉइंट।